Okay, so namaskaram everyone. Today we are here to discuss about a few updates of the interview group. One of the क्या बोलते हैं, one of the ignored groups actually because of the inconsistency and so many other reasons because of all the members. So, but all of them were genuine. So we went on postponing it and things happening like that. Now, first of all, apologies for joining the meeting late, 10 minutes late. And so commencing with the meeting. This meeting is basically for the reorientation and the further planning for one next month, one complete month, upcoming month. So which we can consider a June end. Today is 20th of May, but we are considering June end because we will be having our exams from 11th of June to 17th, 18th of June theory paper, and we don't yet have the timetable of the practicals, but we will see how it will happen. So soon after the practicals end, we're going to have the repeat update meeting of all the groups. So in that we will have research also. Now currently the next 1 month homework is okay. So homework kind of is what we are expected to do. Now one important announcement is that one of your batchmate, Shubjyoti Jana, currently he is working as the coordinator for all the groups. So what we have done for smooth working and for kind of regular working, what we have done, we are having coordinators for each group. Like here we had Winston first, then Isha did it for some time, and now currently Shruti Kanpuria. So similarly in research group, Anshita, no, she is coordinating. So likewise for different all kinds of projects for all the 57 groups, but we are not having all those groups active. So जितने भी active group है वो सबके coordinators है. Or Master Jana is getting the updates from each one of them, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि हम काम कर रहे लेकिन क्या कुछ भी नहीं. That should not happen. We must assess whatever we are doing so that it happens properly, so that there is some, the motive and purpose is served. So for that smooth kind of working, he's ready to coordinate because it takes a lot of time. You can realize just for coordinating one group how much time it takes. So that fellow is doing it. So hats off to him also. And he's doing it last 15 days and he's doing good. I'm happy with that. So the reason is that कि मेरा एग्जाम है, कभी तुम्हारा एग्जाम रहेगा. Work should not stop. This is the main intention. काम होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है. हम लोग आने जाने वाले लोग हैं. We will come and die. We will be involved in the activity or we may not be. Tomorrow, if there is some family problem or if there is some celebration, we may get engrossed into that. But this work of nation building should continue through and through. And it is having all these aspects as we have discussed. I hope you all have gone through the 24-page booklet that was put on the group long back. If not, I will put it again today. We revised it. There were a few corrections, grammatical corrections. So you will go through it because it's very important to know the basis of whatever we are doing. So a general idea is about that in the initial pages, and later on those concepts that we want to strike in the minds of people, those have been put up. The original book is of 200 pages, but it is not possible to print all those in advance because we don't have that much of money. So what we did, we concised it to 24 pages, and we are giving it to others that we can bear. 30 rupees booklet is okay, we can do it. A 300 rupee book, not feasible for us currently. So, and if someone is interested, then they can मतलब कि वो 24 pages का booklet पढ़ के उनको ऐसा लगा कि हाँ, it is something worth and I can go in detail. Or if they are voracious readers, then they can buy. This was the option that we had kept. So we were doing it for no profit, no loss. Okay, coming to the topic of interview. So sometime back, I think maybe a couple of weeks or 3 weeks back, we had put up a photograph of the branches that are expected, right? So a few of them chose as per their choices, as per their interests. And in the last interview wala meeting which was held, I had grossly oriented what was expected to be done. Sorry, what was expected to be done.
but probably that did not percolate and that did not get carried out. So the work got stagnated. Okay, so that is why we are having this reorientation. Now there are 2-3 aspects to the interview group. इंटरव्यू एज सच माने केवल गेस्ट के बारे में ढूंढना, उसको एनलिस्ट करना, फिर उसको ऑफिशियली हम लेटर भेजना, उनका टाइम परमिशन लेना और उनके साथ इंटरव्यू करना ऑन गेम ओवर. दिस नॉट लाइक दैट. दिस इज नॉट सो सिंपल एंड इट्स नॉट सीजनल कि हमारे मन को आया तब हमने किया. ना 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 ना. देयर इज एन एनुअल शेड्यूल. There is an annual schedule that is being put up in that booklet, and that was put up on your KY volunteer batch 2020 group long back, जब वो कच्चा पक्का PDF था. Now we are having a printed copy, a good one. Previously it was just a handwritten copy, 6 page उपक्रम बोल के PDF था. तो उसमें आपने देखा होगा कि we had selective days, and those were in all aspects, okay, including some spiritual points, education related, health related, नेचर रिलेटेड एंड वन मोर, क्लीनलीनेस रिलेटेड. तो जो हमारे ये जो नेशनल डेज हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे वगैरह, तो उसको स्वच्छता दिन बोल के हम मनाएंगे, ऐसा हमारा उसमें एनुअल शेड्यूल था. तो अभी सीन क्या है, हमारे जो ब्रांचेस आप देखते हो, तो वो ब्रांचेस में अगर आप देखोगे तो उसमें डिवीजन इज समवॉट लाइक दैट, related to education, related to health. I'm not recalling all those names, and that page is also not in front of me. So if someone is having it, you can share on the screen. Or wait, can I share? No, this is only with the host. Okay, no issues, forget. So these are the branches, right? Education, ये वो सब branches हैं. और हम क्या विचार कर रहे हैं कि ये branches के ऊपर जिसको choice है वो guest को ढूंढे, हाँ, और उसके साथ interview करे. This was the straightforward concept put before you. Yes. एंड बीच में हमने क्या हो गया, विल्सन गोइंग ब्लैंक, कुछ अनम्यूट कर. नहीं कुछ सर, सोच रहे हो कुछ? आपको स्क्रीन शेयर करना तो आई वाज जस्ट चेंजिंग दैट सेटिंग. नहीं फाइन, लेट इट बी, लेट यू बी द होस्ट, नो इश्यूज. नहीं सर, आई डिडंट मेक इट अ होस्ट सर. स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दिया पर. अच्छा, अलाउ किया है क्या? ओके ओके, जस्ट आई विल हैव टू सी, जस्ट 1 सेकंड. ओके, आई विल सी द स्क्रीन. Yes. So if you see this page, can you see this page? You can increase the screen size. I mean, the one of mine. So this was put up on 20th of April, and the topics were education, Vedic Gurukulam, research, and related collabs with other pathis, and replantation and nature related aspects, Goshala, and awareness campaigns, cottage industry, best from waste industry, Adhyatma, Satsang, and spirituality, purpose of life. So I think 3-4 people, 5 people have taken it. Rest of them have not taken it. Okay, you can stop the screen share. So, okay, I have to stop. Yes. Okay. So these were the topics, right? These were the topics, and a few of them had chosen. Now of you, I got the feedback that there's a confusion. What next have we to do, right? So what I remember the last discussion in the orientation wala meeting is, आपने जो भी field का choice किया है, उससे related जो भी व्यक्ति ने उनके जीवन में काम किया, जैसे for example, when it comes to education, we look forward for a lady called Sudha Murthy. She's established 60,000 libraries in South India. 60,000 libraries, कोई ऐसे 60,000 छोड़ के 6 लोगों को हम किताब गिफ्ट नहीं देते. Forget about libraries. So why she has started with libraries? Because she realizes the importance of education. She realizes the importance of literacy amidst people, sharing of knowledge. You know, I don't remember, there was some post some time back कि कोई ऐसा country है जहाँ पे वो पूरा जो गली है, the whole मतलब street that is dedicated for book sellers, और वहां पे वो अपनी किताबों को दुकान के अंदर नहीं रखते, वो बाहर ही रहता है, और रात को दिन में मतलब वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेचर, बट इट इज केप्ट आउटसाइड, इट्स नॉट लॉक्ड. और उसमें क्या बोला है पता है, कि हम इसमें से जिसको जो बुक लेना है वो लेके जा सकता है, बिकॉज देयर बिलीफ इज दैट द वन हु रीड्स नेवर रॉब्स. उनको बुक चोरी हो जाएगी ये डर नहीं. कोई किताब चोरी करने अगर आएगा तो वो किताब पढ़ने के बाद कभी चोरी नहीं करेगा.
getting my motive behind this discussion is knowledge and क्या बोलते हैं उसको, जो ज्ञान होना चाहिए जो एक व्यक्ति को लिविंग के लिए वगैरह वगैरह, वंस ही गेट्स, क्योंकि वो डर किस चीज का है, हम किताबों को लॉकर में दुकान में क्यों बंद करते हैं, चोरी नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी क्या मान्यता है, यू सी द लेवल ऑफ थिंकिंग, व्हाट दे थिंक कि द वन हु विल रॉब द बुक विल नेवर रॉब एनीथिंग एल्स इन हिज लाइफ, बिकॉज ही वंस ही रीड्स द बुक ही गेट्स अवेयर ऑफ इट। तो अभी इंटरव्यू में दो तीन एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है कि ये रिलेटेड, आपके फील्ड के रिलेटेड आप गेस्ट पर्सनालिटीज ढूंढे, उनके बारे में विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर उधर आप उनके बारे में जाने पढ़े, उनका क्या काम है, उनको प्रोत्साहन कैसे मिला। सो दिस वर्क्स एज ए इंडिविजुअल मोटिवेशनल किक फॉर यू इन योर फील्ड, विच एवर फील्ड। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं किया कि आप एजुकेशन ही लो, आप हेल्थी रहो, और किसी ने एक लिया है तो दूसरा व्यक्ति वो नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं। देयर आर thousands of personalities in this world. If you take education, you take health, you take spirituality, you take business, there's thousands of people. So कोई व्यक्ति एक, आप सपोज विंस ने रिसर्च ले लिया, तो अंशिता ने भी अगर रिसर्च लिया तो नो इश्यूज, यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ देयर क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द टॉपिक्स, बट ओवरलैपिंग ऑफ पर्सनालिटीज विल नॉट हैपन डेफिनेटली। और अगर ओवरलैपिंग ऑफ पर्सनालिटी भी होता है तो बोथ ऑफ यू कैन स्टडी अबाउट द पर्सन, and when the interview is supposed to happen, both of you can divide the questions simply, मिल बांट के खाओ, हरि का गुण गाओ, hail the Lord. Yes, this is the motive. So moral of the story is there is freedom of choosing the branch for interview, there is freedom of choosing the personalities and working on them. So you decide. Now this is the overall gross plan which was told some time back and which I am repeating again, कि इंटरव्यू वाले ग्रुप में ये अपेक्षित है कि हमने जो ब्रांच लिया है वो ब्रांच के पर्सनालिटीज के बारे में हमको ढूंढना है, so that we can talk to them, we get inspired and we inspire other people also. Getting my point? This is first motive. Second motive क्या है कि हमारा जो एनुअल शेड्यूल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसमें नेचर का ब्रांच है, उसमें एजुकेशन का है, रिसर्च का है, अध्यात्म का है, वगैरह वगैरह, ऑल काइंड्स ऑफ ब्रांचेस, हेल्थ का है। तो जैसे अभी सपोज अभी अगस्त में फर्स्ट वीक इज सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज सच that we really cannot imagine, it's beyond imagination. If you go through PSM, breastfeeding का importance क्या है, तो ऐसे जो भी, जैसे अभी वर्ल्ड हार्ट डे, या जैसे कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का कैंसर डे अवेयरनेस डे था, या फिर अनेक कितने सारे डेज है, दैट्स देयर इन द लिस्ट नाउ, आई डोंट रिकॉल ऑल द नेम्स, द थिंग इज व्हेन वी हैव चोजन देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट, ओके। तो वो रीजन, वो डे से, वो टॉपिक से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी है तो उनको हम अप्रोच करें, समझे, उनको हम अप्रोच करें। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे 12 महीने का आपके सामने एनुअल शेड्यूल है, उसमें से आपका जो फील्ड है, सपोज आपका बिजनेस है, तो बिजनेस का उसमें एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि बिजनेस अभी ठंडा है हमारा, हम बिजनेस के ऊपर काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। रिसर्च, एजुकेशन और मेडिकल साइड और नेचर, ये चीजों पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ये 4-5 चीजें जिसपे काम अभी एक्टिवली हो रहा है। तो उसके रिलेटेड आपका अगर ब्रांच है तो आप उसका, आप एनुअल शेड्यूल खोलो और आप उस डे के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि 26 जनवरी के दिन अगर हम क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई सोशल वर्कर है, कोई एक्टिविस्ट है जिन्होंने अपना पूरा काम किया, या उनका एनजीओ इससे रिलेटेड काम करता है। जैसे आई रिकॉल वन नेम, भारत विकास ग्रुप, BVG. I think his name is Hanumant or Hanumant something or Sambhaji. I don't remember. This story was there in our English textbook in 9th or 10th standard. So you just go and see Bharat Vikas Group on Google, जिसका क्लीनलीनेस से या नेचर से रिलेटेड कोई टॉपिक है। भारत विकास ग्रुप अगर आप देखते हो, दैट फेलो स्टार्टेड द क्लीनिंग इंडस्ट्री, मतलब ही यूज्ड टू हायर पीपल, तो उनको रोजमर्रा का उनका घर चल जाता था, और दिस पीपल यूज्ड टू क्लीन दीज एरियाज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दिस वर्क लाइक एनीथिंग, कि उसका सक्सेस क्या था पता है, ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्लीनिंग द पार्लियामेंट एनुअली, मतलब पूरा साल भर पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट क्लीन करना, प्रेसिडेंट का पूरा बंगला, 360 एकर्स ऑफ लैंड क्लीनिंग, ही गॉट दैट। संसद भवन को क्लीनिंग करना, ये करना, तो झाड़ू लगाना ये कोई छोटा काम नहीं है। हम उसको कैसे देखते हैं, इट्स अप टू अस।
And you see the Prime Minister, he used to say in one of his speeches, he said, I have heard, कि हमारे the mind is not the problem, mindset is the problem. सभी के पास वही माइंड है. हम हमारे घर में कोई साफ सफाई करने वाला था तो हम क्या बोलते हैं, वो देखो कचरा उठाने वाला आया. कचरा करने वाले हम है, वो सफाई वाला आया है, वो कचरा वाला नहीं आया है. हम बोलते हैं ना कचरा वाला आया है, स्क्रैप उठाने वाला आया है. वो स्क्रैप वाला नहीं आया है, वो स्क्रैप को, गंदगी को निकालने के लिए वो आदमी आया है. देखो विजन में कितना फर्क है, एक व्यू उसका रहने में. एंड इट्स ऑल अपसाइड डाउन, अपोजिट थिंग्स. कचरे वाला आया है और सफाई वाला आया है. कचरे वाले हम है, हम गंदा कर. This we will never accept because it comes on us, no? So, but this is how mindset needs to be changed, and mindset is the problem currently in the nation. I would like to give the example of the current pandemic going on. People are blaming कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम है. ऑक्सीजन सिलेंडर कब लग रहा है, जब पेशेंट बैड हो रहा है. पेशेंट बैड कब हो रहा है, जब वो पॉजिटिव आके घर में रुक रहा है. और वो पॉजिटिव कब आ रहा है, जब वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, हैंड सैनिटाइजेशन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं. उसको आके घर में कोविड तो चिपकेगा नहीं, वायरस. हमारी लापरवाही से वायरस इज कैचिंग अस. यू गेटिंग मी? बट नो वन विल एक्सेप्ट दिस कि इट्स बिकॉज ऑफ आवर क्या बोलते हैं उसको, लापरवाही को. व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड? एनीवन कैन प्लीज हेल्प मी विद दिस? लापरवाही, हाँ, केयरलेसनेस. केयरलेसनेस. यस यस, एग्जैक्टली. तो हमारे केयरलेसनेस की वजह से वी आर सफरिंग द प्रॉब्लम. बट नो, we want to blame the government, we want to blame the authorities, we want to blame the doctors. ये कुछ काम के नहीं है, ये पैसे लूट रहे हैं. तो तुम बीमारी क्यों पड़ रहे हो? किसी ने तुमको घर पे आके निमंत्रण भेजा क्या कि आप कोविड पॉजिटिव और हमारे हॉस्पिटल में आओ? नो वन इज इनवाइटिंग यू. सो दिस इज द सीन. यू गेटिंग मी? Mindset is the problem and we are in the way to change it. And this should happen from the means of these interviews. This should happen from the means of these interviews. ये इंटरव्यू लोगों में इग्निशन, इंस्पिरेशन करना चाहिए. ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है. हम 5 ही लोगों तक पहुंचे, लेकिन ऐसा पहुंचे कि परिवर्तन होना चाहिए. हाँ, परिवर्तन होगा नहीं होगा, दिस इज द फ्रूट दैट गॉड विल डिसाइड. बट हमारा क्या कर्म है, व्हाट इज आवर वर्क? वी आर सपोज टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ enlarging or pulling the line of positivity. This is our job. Awareing the people is our job. Rest is the choice of nature and what happens. Okay, so this we should do. और हमारा देखो लोगों को पसंद आएगा ना, तो it will enhance like anything. You really cannot imagine कि वो किस लेवल तक पहुंच सकता है. I have given you the example of this fellow, VVG. VVG छोटा सा कंपनी. आप सोच सकते हो क्या झाड़ू वाले को कोई ऐसा, माना हम तो ऐसा देखेंगे ये झाड़ू वाला है, ये पकौड़ी वाला है, ये चाय वाला है, ये ऐसा वाला है. अभी चाय वाला बोला तो आपको ध्यान में आ गया होगा. द थिंग इज वी कैन नॉट रियली इमेजिन कि कोई व्यक्ति कहाँ है और वो कहाँ पहुंच सकता है. सो दिस इग्निशन शुड हैपन. आपने आई एम कलाम ये मूवी देखा होगा, छोटा शॉर्ट फिल्म है, 25 मिनट्स का या 1 आवर का, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव सीन दैट. वो रेगिस्तान में चाय की टपरी पे काम करने वाला आदमी एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्पीच देखता है, ही गेट्स इंस्पायर्ड. एंड डॉक्टर कलाम हैज डन दिस ऑल हिज लाइफ. और ऐसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई जो क्या बोल रहे हैं, इंस्पायर कर रहे, ही इज वन ऑफ द सेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर. You read the book Transcendence, you realize it's beyond cultures. The relation of divinity is beyond cultures. And if you read this 24-pager book, उसमें एक पोस्टर है, knowing the purpose, knowing the way to knowing the purpose of life. एक पोस्टर है उसमें, knowing the way to know the purpose of life. ऐसा कुछ उसका हेडलाइन है. So if you read that, you'll realize कि why we are here as humans. So this is the basis of all kinds of groups that we are running, and this is the basis of interview also. कि हमको निस्वार्थ काम करना है. This is one of the purposes of life. और इसके लिए लोगों को ignition, inspiration मिलना चाहिए. इसके लिए सारा इंटरव्यू का प्रपंच है. You getting me? So this is how we are working selflessly in the aspect of interviews. So first point was हमारे ब्रांच के लोगों के बारे में ढूंढना, पर्सनालिटीज के बारे में. अच्छा, अब उसका रिलेशन कैसे कि हमारा जो एनुअल शेड्यूल है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करें. कि समझो अभी अगस्त में फर्स्ट वीक में ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई कम्युनिटी मेडिसिन का व्यक्ति है. अभी ऐसा हमारे कॉलेज के फैकल्टी के पास मत जाना, ठीक है ना. कोई थोड़ा ऐसे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखो अभी हमने भी हमारे डीन सर का और पीएसएम के एचओडी सर का कैंसर अवेयरनेस के टाइम पे हमने इंटरव्यू लिया था.
तो आई एम नॉट टॉकिंग कि ऐसा वैसा है, अरे कोई नहीं मिला तो हम ही बोल देंगे, समझे ना, तुम खुद प्रिपरेशन करना स्लाइड का और उसके ऊपर तुम टॉक कर देना। उसका एक बार अगर आप ये करते हो ना, क्या बोलते हैं, क्रॉस चेकिंग, मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक बार स्क्रीनिंग करवा लेते हो और उसमें कुछ विवादास्पद नहीं है, कुछ हमारे एथिक्स आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट नहीं है, जो आइडियली होना चाहिए, मतलब किसी को भी हमारी वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंट्स उसका हर्ट नहीं, हाँ वो खुद से अभी उसको खुद को परेशान करके रह रहा है, वी कांट हेल्प, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी से, व्हाट नॉट अदर्स अंडरस्टैंड। वो क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर है ना, उसके दिमाग में जाके तू ऐसा सोच, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, बट हम सही बोले, हम किसी को दुखाए नहीं, ये हमारा काम होना चाहिए। और देयर आर अ फ्यू थिंग्स which people say unscientific and related to Ayurveda, Charya and other pathies and all. So this also has to be clarified by us. Because we are not, the motive is to break the market, not make the market. We are not interested in the market and money making game. So those they are क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा डिबेट का विषय हो जाता है, लेकिन उसको बहुत सरलता से, सहजता से हमको उसको वो कंडीशन में उसको ये करना है, मैंने ढहलाना है उसको, गेटिंग मी, मतलब एक उसमें बोलते हैं कि बोले सच कड़वा है, हम सच बोलते हैं तो सच कड़वा है, सच कड़वा नहीं है, कड़वी हमारी जबान है, our tongue is bitter, it's not the truth which is bitter. So this is one concept, how it says कि कभी छोटा बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके बीमार पड़ने की वजह से उसको दवाई तो पिलानी पड़ती है, कड़वी दवाई, लेकिन उसकी माँ उसको दवाई कैसे पिलाती है, ऐसा पिलाती है उसको पता ही नहीं चलता, कितना उसको या तो चॉकलेट दे देगी या कोई चीज में मिला के दे देगी, माने हाउ टू से, हाउ टू प्रेजेंट इज रियली व्हाट मैटर्स। It may be very much bitter, but for the betterment of people, it must be known to them. They may not accept it at the moment, but for their betterment, it is utmost important. And that is why how we present really matters. How we present really matters. One very famous example, I think, which I had given some time back also, कि Solapur, out of the 718 districts in India, सोलापुर was selected as one of the 100 smart cities उसके ऊपर काम करने के लिए। अभी तुम सोलापुर में इधर 2-4 महीना रहे, तुमको ऐसा कुछ लगा? डेफिनेटली नॉट। हम अभी भी गांव ही बोलते हैं सोलापुर को, नवी पेट में जाते हैं ना मेन सिटी में, तो उसको मैं सिटी में जा रहा हूँ नहीं बोलते, मैं गांव में जा रहा हूँ बोलते, लोकल लैंग्वेज। तो कहने का क्या मतलब है, ये 40-45 लाख लोगों का गांव ही है। बट द सीन इज they have chosen it as मतलब to improve it as a क्या बोलते हैं 100 स्मार्ट सिटी में एक, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेजेंटेशन था ना, इट वाज वेरी डिफरेंट। हाउ इट वाज डिफरेंट, उन्होंने हमारे सिटी के प्रॉब्लम क्या है, उसको सुधारने का सोल्यूशन क्या है, और उससे हमारी सिटी कैसे बन जाएगी, ये पूरा प्रेजेंट किया था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन एंड हाउ द वे वी आर गोइंग टू वर्क। सो व्हेन यू पुट अप द होल पिक्चर, no one will come and cross question. हम क्या बोल, अभी क्या चल रहा है, we are just talking about the problem statement, तो people are getting frustrated and there are becoming to's and pro, मतलब against, for and against ऐसा तैयार हो रहा है। लेकिन when we talk about the solution, people will be interested in that. If they are not interested, they may oppose, but over time they will understand. हम हमारे काम में एकदम दृढ़ अगर रहे, नियम में पक्का रहे, हमारे हमारा विजन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, तो कोई कितना भी चिल्लाए, इट रियली डजंट अफेक्ट्स। सो दिस इज द पर्पस, दिस इज द वे वी हैव टू वर्क एफिशिएंटली। उसमें एकदम दृढ़ होना जरूरी है कि मैं ये प्रश्न के बारे में ढूंढ रहा हूँ, मैं ये काम कमिटमेंट से कर रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वर्किंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉलीडे साइकिल इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी आप बोलोगे हाँ अभी तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तुम 1 महीने के लिए गायब हो रहे, सी दिस इज अ यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड आई नीड टू पास। व्हाई? बिकॉज आई नो हाउ मच आई हैव स्टडीड ऑल अलोंग द ईयर। इतना सब करते बैठे हो तो उसमें पढ़ाई कितना हुआ है, आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई हैव डिवाइडेड माय टाइम, गेटिंग माय, एंड अभी भी अपडेट तो चल ही रहेगा। एंड कॉलेज के छोटे मोटे एग्जाम को तो हम सुनते ही नहीं है, काम तो चलते रहता है, बट दिस इज अ यूनिवर्सिटी एग्जाम, आई मे फेस ए 6 month back, right, 3 month back, so that would not be favorable for the academic part also and this work of the samstha also. So it's better we work with sat sat vivek, sat sat buddhi. So this is I am trying to justify this. So first point is आपके पर्सनालिटीज ढूंढो, एनलिस्ट करो, उसको ग्रुप पे भेजो। दूसरा है ग्रुप पे भेजो या फिर आप वीकली अपडेट में श्रुति खानपुरिया को अपडेट कर दो, तो शी विल अपडेट टू द सेंट्रल कोऑर्डिनेटर।
and that will reach me. And second aspect was कि जो हमारे days है, हमारे celebrations है, वो उत्सव, वो दिन, वो जो है उससे रिलेटेड आप ये करो, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटीज को चूज करो. तो आप या तो कैसे कर सकते हो, आप अपने फील्ड से रिलेटेड पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले सकते हो. जैसे हेल्थ रिलेटेड सारे टॉपिक, ओके, सपोज इफ विंस्टन इज डूइंग हेल्थ रिलेटेड, तो ही विल टेक ऑल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स. सारे साल में 10 है, 20 है, 30 है, वी डोंट नो, व्हाटएवर. If he needs help, then he can, and someone else is also interested, then two of them can divide the topics. कि first 6 months तू कर ले, second 6 months मैं कर लेता हूँ, या 1 महीना तू कर, 1 महीना मैं करता हूँ. This way they can divide the topics. क्योंकि कोई महीने में 4 health related days है, कोई मंथ में है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. So it's up to you how you divide it, but it should happen. So priority topic is health first. Health related personalities, health related topics. Then second priority related topic is education. Education and research. All inclusive. Education and research. तो उसमें जैसे 28 February celebrated National Science Day. I don't know if it is there in the annual schedule or not. If not, you can add it. Okay. So just please put it. And we हमारा APJ अब्दुल कलाम का बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी भी हमने सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर. तो हमारे स्कूल ऑन व्हील्स का ब्रोशर हमने उस दिन रिलीज किया था. हमारे वो टाइम पे जो डीन थे डॉक्टर जयसवाल मैम, उनके हाथ से हुआ था. तो कहने का मतलब है कि ये जो डेज है उसके रिलेटेड आप पक्का करो, और कल शाम तक आप अपडेट करो. तो आप श्रुति को अपडेट करो, वो या तो एक वर्ड में बना देगी या हैंड रिटन लिख के वो उसको सबको एक साथ में कर देगी. If Winston still wants to coordinate, he can coordinate. It's okay, no issues. हाँ, कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो एक जन के ऊपर लोड नहीं आएगा, मेरा ये बोलना है. और एक बात ध्यान में रखो, आपको 100% उसमें से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा. ये मेरा चैलेंज है. ऐसा एक भी चीज नहीं है कि ऐसा भाई इसमें मेरा क्या फायदा है. हाँ, ये लोभ से जो हम देख रहे हैं वो भी गलत है बेसिकली. कि सीन क्या है कि आइडियली हम सेल्फलेसली करना चाहिए, ये आइडियल सीन. लेकिन ठीक है, अभी इतना वो एटीट्यूड डेवलप, सेल्फलेसनेस का एटीट्यूड डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है. तो ठीक है, हम थोड़ा सेल्फिश रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे सीखने का पेज, तो सीखने को कुछ मिले. तो निश्चित आप कोई भी ग्रुप पे ज्वाइन हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता. ठीक है, हर चीज का पर्पस डिफाइंड है. तो पहला और दूसरा पॉइंट हो गया. अभी तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो फर्स्ट और सेकंड कनेक्टेड है, फर्स्ट और थर्ड कनेक्टेड. फर्स्ट है आपके फील्ड के पर्सनालिटीज ढूंढो, सेकंड है डेज से संबंधित ढूंढो, और थर्ड है प्रोजेक्ट से संबंधित ढूंढो. तो प्रोजेक्ट का जो प्रकल्प स्वरूप बोल के 2 पेज PDF में है, वो मैं 4 नंबर 5 नंबर पेज है, मैंने एनुअल शेड्यूल की इमीडिएटली बाद में ही है, आप देख लो. वो अर्थ संकल्प के पहले है, डोनेशन का जो वो वाला पेज है उसके 2 पेज पहले. तो आप देखोगे तो उसमें प्रकल्प स्वरूप सारे प्रकल्प के बारे में जानकारी है. मैनेजमेंट आ गया, बिजनेस आ गया, एजुकेशन आ गया, वैदिक गुरुकुल आ गया, स्पिरिचुअलिटी आ गया, रिसर्च आ गया, एवरीथिंग हेल्थ रिलेटेड सब आ गया. वो सारे प्रोजेक्ट्स है. तो प्रोजेक्ट रिलेटेड उसको ढूंढो. प्रोजेक्ट रिलेटेड लॉन्ग टर्म रहेगा, ओके, बियॉन्ड 2 years. व्हाई? बिकॉज एक स्कूल ऑन व्हील्स अगर हम छोड़ते हैं और गौशाला का एंड नर्सरी का, ये 3 चीज हम ट्राई कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू वर्क 100% ऑन दैट. टाइम बहुत जाता है उसमें, तो वी आर ट्राइंग टू डू इट. बट ये 3 प्रोजेक्ट है जो अभी के लिए है. माने नेचर रिलेटेड क्या है, ट्री का है, नर्सरी का, दूसरा गौशाला रिलेटेड है, काउशेड, और ये जो है एजुकेशन का स्कूल ऑन व्हील्स रिलेटेड है. उसके अलावा जो सारे प्रोजेक्ट्स है, वो सारे प्रोजेक्ट्स 2 years के बाद के लॉन्ग टर्म वाले. तो यू हैव इनफ टाइम. बट तब का तब देखेंगे, ऐसा काम नहीं होता है. वी हैव टू चार्ट इट. ऐसा अगर विचार करते तो यूजीकॉन तो अगस्त में, जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है. वी स्टार्टेड राइट इन द मंथ ऑफ February when there was enough opposition. No one knew what UGCON is among the faculties in VA Medical College. Why? Because they were associated with the conferences where faculties are involved, not students. तो नहीं से पूरा सही, right from the scratch it started and it ended up in such a beautiful painting. That comes only from long-term vision, proper planning, and
micro planning for the mega project and its execution time to time. मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ. I'm telling you the way that we are expected to work, and this only will get us to some position or place or some achievement or some happening. Otherwise, हाँ हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे. There's no end to that. Okay, so these are the three things. So what I was saying कि ये जो बाकी के सब है वो 2 years के later है, लेकिन और जो आपका ये तो थर्ड वाला जो आपका है प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो except these 3 projects, rest all is 2 years के बाद का. So that can work in the long run. जो सेकेंड वाला प्रोजेक्ट है कौन सा, डेज रिलेटेड, दैट इज मीडियम टर्म, मतलब 6 months to 2 year के बीच में, 6 months to 2 years के बीच में. मतलब अभी जो डेज आएंगे वो भी आप काउंट करोगे बेसिकली, बट आगे भी डेज आएंगे तो उससे रिलेटेड प्लानिंग और प्रोजेक्ट, दिस इज मीडियम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मीडियम टर्म. और जो शॉर्ट टर्म है कि जो अभी हेल्थ अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस है, ये चलते रहना है. डेज के अकॉर्डिंग आप मैच करो नहीं करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट. अगर आप प्लान करते हो, अगर आप सीरीज शुरू करते हो, तो एवरी वीकली या एवरी बाई वीकली, फोर्टनाइटली या एवरी मंथली आप शुरू करो. जैसे आपकी अदालत आता था ना वैसे, तो ही वॉज डूइंग इट वीकली. सो लाइक दैट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, बट फॉर दैट कंप्लीट प्रिपरेशन शुड बी देयर. आपका सारा गेस्ट रेडी चाहिए, आप उनसे परमिशन लेते हो तो केवाई का लेटर हेड आपके पास चाहिए, तो आपका प्लानिंग रहेगा तो द एम्प्लॉय विल बी वर्किंग फॉर यू. आपको सब दे देंगे हाथ में और आप बोलोगे नहीं होगा, ऐसा होगा वैसे, तो दैट विल नॉट बी वर्थ, राइट? वी कैन नॉट पुट अप ऑल द कॉन्फिडेंशियल थिंग्स और अथॉरिटीज टू एवरीवन. यू गेटिंग माय पॉइंट? आई हैव 100% फेथ इन ऑल ऑफ यू. आप कोई बदमाशी नहीं करोगे, उसमें कोई वादा ही नहीं है. बट दिस कम्स अक्रॉस द लॉज. ये रोहित पापड़िया का काम होता तो मैं आंखें बंद करके बोलता ओके चलो मिश्रण आप कर लो, अंशिता आप कर लो, श्रुति आप कर लो, अनुश्री आप कर लो, है ना, ईशा आप कर लो. ऐसा भार्गवी लेट ज्वाइन हुई है क्या? ओके ओके. So this is how it is. I mean, but we are obedient to some laws, some rules. Okay. So everything has to be on paper, because though we are the decision makers, but there are 6 members other than Rohit Apadiya also. So we need to consider everyone, and we need to report to everyone. हमारा एक ग्रुप है KYS हृदय, कर्मयोगी संस्था हृदय मीन्स हार्ट, सोल. तो जो 7 members का बॉडी है, तो we keep on updating everything whatever is happening there. You getting me? So it has to be transparent, and I have to answer them if they ask me आपने किस basis पे इनको authority दिया, तो I am answerable. तो किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए. If you're ready to work and if the plan is ready, micro planning is done, definitely all authorities will be given, no issues, है ना. लेकिन इसमें आपका टाइम जाएगा, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैं हर वीक एंड में 4 घंटा दूंगा. ओके, तो वीकेंड में 4 घंटा देना ही देना है. नहीं फिर ये वीकेंड पे हम अंकल के यहाँ पे चले गए थे, अगले वीकेंड पे ये हो गया था, फिर तीसरे वीकेंड पे ये हो गया था. दिस कैन नॉट हेल्प. इफ इट्स जेन्यून, डेफिनेटली एग्रीबल. कोई बीमार है, कोई बड़ा फंक्शन है, कोई है, रहता है, हमारे हाथ में नहीं है वो चीज है, बट वंस इन अ वाइल वी कैन अंडरस्टैंड. एंड इफ इट इज जेन्यून, देखो कोई लोग के जीवन में प्रॉब्लम आते हैं. हमारे एक बैचमेट है, उसको 3 महीने पहले उसका किडनी स्टोन का ऑपरेट हो गया था. फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद वो पॉजिटिव आया. उस टाइम पे उसको ज्यादा तकलीफ नहीं था, सीटी स्कैन स्कोर 0. तीसरे महीने में फिर पॉजिटिव आया सेकेंड टाइम. उस टाइम पे उसका सीटी स्कैन स्कोर 10. और ही वाज लाइक कि मैं 3 महीने से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हो गया है, मेरे हेल्थ से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स मेरे को आ गए वगैरह वगैरह. तो ये 3 महीने में उसको कुछ अपेक्षा कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली नॉट. इट्स माई मॉरल ड्यूटी दैट आई मस्ट सपोर्ट दैट फेलो. गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं हमको काम करवाना है, हम कुछ भी करें. दिस इज नॉट इट वर्क. इट वर्क्स बायलैटरली, in collaboration, in coordination, in cooperation, and that is why until unless it's genuine, it's okay. Otherwise you should be sticking to our timetable. उसके लिए आपके डेली शेड्यूल का जो टाइम टेबल है उसको आपको चिपकना सीखना है. उसके लिए पहले डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं इसका कुछ नहीं बराबर है. कितने बजे खाते, क्या टीवी देखते, मूड आ गया फ्रेंड के साथ चैटिंग हो गई, मूड आ गया 1 घंटा फोन हो गया, मूड आ गया थोड़ा वीडियो गेम खेल लिया, किसी का फोन आ गया, किसी को मदद की 2-4 फोन हो गया, फिर टाइम मिला थोड़ा पढ़ लिए, एग्जाम चल रहा है तो थोड़ा वो कर लिए, ऑनलाइन क्लास है, अंकुश सर का क्लास है 3 बजे तो वो अटेंड कर लिए. ऐसा है. तो
कहने का क्या मतलब है कि पहले हमारा स्केड्यूल रेडी होना चाहिए, दिन में 3-4 चीज ऐसा होना चाहिए जो फिक्स हम उस टाइम पे करें, फिर वो खाना खाना ही क्यों ना हो, 1 बजे के पहले मैं खाना खाऊंगा, मतलब 1 बजे में खाना खाऊंगा, तो हमारे बाकी स्केड्यूल की चीजें 1 बजे के पहले और 1 बजे के बाद में ऐसा डिवाइड हो जाएगी. That will work very beautifully. It works miraculously. You see the effect. You will be able to manage time like anything. जैसे you are the boss and you are very busy person and you will realize that you see any personality without time management we cannot succeed. Time सभी के पास 24 ही घंटा है. We all have 24 hours. So we cannot take them for granted. See, we have already wasted 20 years of our life. We don't know whether we will be 60 or 80. 1/3 or 1/4 life is already gone. इसके आगे हम रोज 8 घंटा सोते हैं, 8-10 घंटा as per the so-called science, which is foolish, of course, because we have been having personalities who have never slept in their lifetime in the last years of their life. You see, Leonardo da Vinci, he just slept for 15 or 20 minutes in 4 hours. तो 20 minutes भी आप पकड़ते हो तो 6 4 24, तो 6 into 2 120, मैंने केवल वो दिन भर में 120 मिनट सोते थे, 2 hours, लियोनार्डो डा विंसी. अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लो हमारे ये so many saints were there. I mean still they are there. There's some lady in near Jodhpur, I don't remember her name, they call her as Sati Mata or something. So she खाते नहीं है, पीते नहीं है कुछ और सोते भी नहीं. If you read the biography of Maharishi Raman, he did not eat for the last 14 years of his life, did not eat, he did not drink. Can you imagine? This doesn't fit in our definition of so-called science, but this is truth. Maharishi Raman has not happened 5,000 years back. We may not believe. Just happened 100 years back. अब विकिपीडिया पे मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, आप जाके देख लो. So the thing is, things that we don't know, it doesn't mean that they don't happen. Divinity को हम नहीं मानेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. But that's the ultimate thing. So there are so many things that are beyond imagination. You see some people who have started thousands of organizations or thousands of institutes in their lifetime. How can this happen? There's a personality who has started 1200 plus institutes in lifetime. Okay, I will not reveal the name. Okay, you will hunt 1200 institutes in one life. So 1200 institutes. Okay, I will reveal. जाने दो अभी, तुमको परेशान नहीं करो. Meeting has ended. नहीं. Okay, just one second. हाँ. So if you know the Akshardham of Delhi, Akshardham, Swaminarayan BAPS Swaminarayan Mandir. So belonging to the Swaminarayan Parampara. So one of their head chiefs, okay, Pramukh Swami Maharaj, who was there till 2016 August. So in his lifetime, he has created 1200 temples. Now someone should know, this discussion should not end up in religion and all this. My motive behind talking this example is 1200 institutes. 1200 mandir is like 1200 institutes. So if you understand, आपने एक लाइफ टाइम में 1200 इंस्टीट्यूट बनाए, हम 12 लोगों को तो जोड़ सकते हैं अपने जिंदगी में. He visited 17,000 villages in his lifetime. He responded to 7.5 lakh letters in his lifetime. He visited 60 nations in his lifetime. और ऐसा नहीं है एक ही नेशन को 2 बार गया तो that is counted at 2 times. No. Now he had visited US for 16 or 17 times. So that one trip, one nation. You getting me? They established this Akshardham in Robbinsville, New Jersey, 250 acres of land. So the biggest Hindu temple is not in India, it's outside India. Such things which are beyond imagination. I am talking about the work. Here religion is not the point, Adhyatma is not the point, spirituality is not the point. You understand the motive behind what I'm talking. Because otherwise, what will happen? You will say, you are talking one way and this is wrong. No. Please don't take it otherwise. Yesterday only one of your batchmates, सुबह 3:30 बजे तक उससे बातचीत हो रही थी. मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है, प्लीज अंडरस्टैंड. तो नाउ आई एम अदृश्य, सो यू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू मी. सो सुबह 3:30 बजे से वो 3:30 बजे तक वो व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई. And at the end of his call, he says, yes, Karmayogi Samstha is absolutely doing well and I agree with whatever you heard. Initially, he was opposing. He says, no, you are going one way. This is not correct. In an organization, it should not happen. I said, at least you know what you are speaking. You should know at least what the organization is working. Otherwise, without that, if you're just speaking, that's not worth, right? Without knowing something,
हम आरोप कर रहे तो ये सही बात नहीं. So you just consider the work here. See, I take that work as an exemplary example. 1200 institutes are मंदिर, 7.5 lakh letters by hand, मतलब रिप्लाई किया. 17,000 गांव में, 17,000 गांव, तुम एक गांव एक दिन गए. He lived for 95 years. और उसपे फिर बहुत सारी, he visited 60 nations and plus for so many times. तो वो सब आप कैलकुलेट करो, सर्वसामान्य कोई कर ही नहीं सकता. This definitely some divine power. May it be any pope, may it be any saint, any sant, or anyone. The thing is, it's divine. And when we are accepting this power, then only. Otherwise, अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता ना, तो everyone would have been the most successful person on this planet. But life is not a linear equation. There's already a video of 25 minutes. You can watch it. So coming back to the topic of interview, finally, we are concluding the meeting as there are three things. फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने फील्ड के पर्सनालिटीज ढूंढो, जो आपका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है. ढूंढ के उसके बारे में पूरा साइनॉप्सिस बनाओ. विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट तो करना है, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में आप वीडियोस देखो, उनके स्पीचेस सुनो, तो आपको समझेगा उनका काम क्या है, उन्होंने क्या किया है. उसके बाद में सेकंड पॉइंट इज, हमारे जो डेज है वो भी अभी करना है, लेकिन वो 6 months के बाद में भी आप अमल में लाते हो तो नो इश्यूज. उसके पहले लाते हो तो बहुत अच्छा है. तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो वो डेज के हिसाब से पर्सनालिटीज को चॉइस करके, उनको अप्रोच करके, उनके बारे में पहले जान करके, उनके काम को जान के, फिर उसके बाद उस हिसाब से अप्रोच करना है. अगर आप वो नहीं कर सकते, समझो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए कोई पर्सनालिटी आपको नहीं मिले, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन या पीडियाट्रिशियन या पीएसएम वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, आप खुद ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर पूरा अच्छे से प्रिपेयर करोगे और आप वो प्रेजेंट करोगे पहले उसका स्क्रीनिंग करवा के. और आप वो सेशन को होल्ड करो और अपने केवाई के जितने भी सारे मेंबर्स हैं अलग अलग ग्रुप के, सभी ग्रुप पे हम उसको डालेंगे और आपके बैचमेट्स आपके सेमिनार को अटेंड करेंगे, तो आपका पर्सनल लेवल पे ग्रोथ होगा, पहली बात. दूसरी बात कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, वही पर्सनल लेवल पे ग्रोथ है. और दूसरी बात यह है कि आपका काम भी हो जाएगा, आपको भी नॉलेज गेन होगा. और तीसरी बात यह है कि आपका कमांड बढ़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, कमांड बढ़ेगा. तो आप और काम कर सकते, मतलब इफ यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर बैचमेट्स, डेफिनेटली you will get the confidence to speak in front of the guest with all politeness and due respect and everything like that. So make it an opportunity of self development. Make it an opportunity of self development. Next 3-4 months अगर आपको आपके टॉपिक रिलेटेड फैकल्टी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप खुद प्रिपरेशन स्टार्ट करो. तो ये महीने में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, या ये साल में, मैं बोला ना, साल भर का बना के एक बार दे दो इसके पास, श्रुति के पास, कानपुरिया के पास. उसके बाद में व्हाट शी विल डू, शी विल अपडेट इन द वीकली मीटिंग टू द सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, सो that will get on paper with us. So then we can have a check कि भाई, we can give a reminder कि Winston, in the month of June you are going to do this, और अनुश्री you are going to do this thing in July, ऐसा. तो उस हिसाब से आपको अपडेट देंगे तो आप भी प्रिपेयर्ड रहोगे. सपोज बाई चांस आप है तो दैट विल वर्क इन सिंक्रोनी. गेटिंग माय पॉइंट. एंड थर्ड वाला जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड, सो दैट लंबे रेस का घोड़ा है वो आप करोगे, ऐसा सब है. तो अभी आपके लिए ये काम है, ये तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका टाइम टेबल पूरा एनुअल अगले साल 2022 तक, मई 2022 एंड तक आप क्या क्या कैसे कैसे करोगे, आपके एग्जाम के ओरिजिनल टाइम टेबल को ध्यान में रख के, या वो सीजन को थोड़ा देख लो तो प्लस माइनस कर देना उस हिसाब से, बराबर है. 1-2 महीना आप वो छोड़ सकते हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो. बाकी ये ऑनलाइन एग्जाम को प्लीज, ये ऐसा बहाना मेरे को प्लीज मत देना. आपको भी मालूम है और मुझको भी मालूम है कि कितना डिफिकल्ट रहता है ऑनलाइन एग्जाम. ऑफ कोर्स दिस इज अ सरकाज़म. सो ऐसी सब बात है. ओके, हम मीटिंग में जाते जाते प्रकट हो गए. तो द थिंग इज, दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान दिस माइक्रो प्लानिंग फॉर योर मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द कंप्लीट ईयर. एनुअल आपका जो भी आप करने वाले हो उससे रिलेटेड आप माइक्रो प्लानिंग करो. और इसमें एक अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन का भी हमने बात किया था, तो बिकॉज ऑफ सम थोड़ा क्या बोलते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो गया है, तो अभी 21 में कल से एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए था कैंसर अवेयरनेस कैंपेन, बट मे बी वी विल रिस्ट्रिक्ट इट टू अ कपल ऑफ डेज और 5 days डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज अवेलेबल. Let us see how we can work with that. Okay, so this is all about the interview wala meeting. This is all about you have to work. I hope there are no doubts. Shruti has worked very hard. I request all of you to give her a big applause, because she has been talking to all of them very much individually.
and when she updated I was very happy to know. देखो इतना जी जान से काम करने वाले कोई मेरे को अभी तक मिले नहीं कि इतना सीरियसली आप कमिट करते हो और कमिट करके फिर आप उसके ऊपर चलते हो. That really matters. That really matters. अब भाषणबाजी करने वाले हमारे पास बहुत पॉलिटिशियंस है. The one who works, what he speaks, that really matters, and she has taken great efforts. And so I think in a day or two, maybe आज Thursday है, तो by Friday evening or Saturday evening, fix the date and you can update everything to Shruti. और जो लोगों ने अभी तक ब्रांच नहीं लिया है, श्रुति आप क्या करो, ये मीटिंग आज रात को या कल तक अपलोड हो जाएगा. उसके बाद आप उनको पूछो, आप ये मीटिंग देखो, उनको ऐसा बोलो कि आप ये मीटिंग देखो. देखने के बाद उनको जो समझा है, अगर वो करना चाहते हैं तो दे कैन कंटिन्यू, अदरवाइज दे कैन लीव. यस और नो? नो इश्यूज. मतलब हमारा कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, हम उनको हकाल भी नहीं रहे. लेकिन इतनी सी बात है कि अगर आप काम कर रहे हो तो उस रिलेटेड आप जानकारी लो. नहीं तो अभी ये देखो, किसी को ये एग्जाम्पल अच्छा लगेगा या न लगेगा, क्योंकि दैट कैन बिकम, मतलब दैट में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू सम. मेरा काम करने का एक, हमारा एक पद्धति ऐसा है, अगर हम इंटरेस्टेड है तो हमको उसके बारे में हर चीज जानने का पूरा अधिकार है. वी विल गेट इनटू इट. बट हम उसमें नहीं है. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे को 4 साल से अनुभव आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. कोई ऐसा नहीं है कि 2019 या 20 बैच से मेरे को कुछ अनुभव आया. नो नो नो, दिस हैपनिंग लॉन्ग बैक. सो वो कैसा रहता है, my batchmates, I know how many helped us in UGCon and how many were speaking against it and how many tried to trouble. So I have not forgotten anyone. I have forgiven everyone, but I have not forgotten anyone. You get the difference? We have forgiven everyone, but we have not forgotten, because next time again they will do the same problem. So we are aware now what should happen, what should not happen, how we should deal. So the thing is कि if we are not working, still we want to know, इसको हम हिंदी में बोलते पंचायती, and that is not acceptable. If we are into it, we should know everything. But simply हम उसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे, खाली टीका टिप्पणी. This is the first statement of the ideology वाला paragraph in the 3rd page. ये 24 पेज का जो PDF है, उसमें क्या है देखो, आप अगर आप रीड करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि केवल टीका टिप्पणी करना और ये करना is not worth. Come on. Okay, so working is important, and this is the message that we have. So I conclude the meeting. Already getting 9:30. We have the research update meeting also. तो इस हिसाब से बहुत अच्छा रहा मीटिंग. लेट ज्वाइन होने के लिए फिर एक बार apologies, and I hope you all have enjoyed. In case of any doubt, you can ask 1 minute, 2 minute. Anyone is having any doubt? Isha, Anushri, Bhargavi, Anshita, Winston, Shruti. Anyone is having any doubt? You want to ask anything? If you want to ask anything, you can ask me. If you don't want to ask in front of everyone, you can text message me. No issues. Any questions? Anything? Okay. तो बस इतना, ये एक्टिवली आप करो झटपट, तो उसका आपको लाभ होएगा, एंड यू विल बी एंटरटेनिंग योरसेल्फ. यू विल लर्न समथिंग. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो विथ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी ने मीटिंग छोड़ दिया? कोई बात नहीं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट. ओके, शैल वी स्टॉप? विंस्टन, व्हाट डू यू से? Anushri? Doubts nahi hai. Anushri, is she happy? Is she happy with the working style, or she wants to say something? No, sir. I'm happy. I will It's okay, na? look into I it. think, see, Yes, sir. last time the discussion we had, if you go through the 24-page thing, no? This is the one of the first documented booklet, basically. Whatever we are doing now, उसको on paper लाने के लिए जो प्रयत्न है, वो ये है. And thanks a lot to Anushri also, because when she asked certain amount of questions, at that time I felt कि जैसे इसको question आ रहा है कि ये working कैसे होता है या इनका क्या प्रयोजन है. Now everything is there ना, annual schedule है, सारे branches है, सभी group है, और क्यों कर रहे हैं ये 3rd और 4th पेज पे आइडियोलॉजी वाला भी वो कुछ तो है, 2nd और 3rd पेज पे, whatever that paragraph, the whole 2 पेज में है वो. एंड पोस्टर से जो हम बोलना चाहते हैं वो डिपिक्ट होता है. तो बेसिकली शी इज one of the reasons because of which we took it seriously कि भाई हाँ, कितने लोगों को, वैसे ये हमारा चल रहा था. I was working in terms of preparing videos. जो सारे प्रोजेक्ट्स थे ना, तो उसका हर एक का वीडियो बना रहे थे. जैसे स्कूल ऑन व्हील्स का वीडियो बनाया, इंटरव्यू वाला अपने मीटिंग का वीडियो हो गया,
रिसर्च वालों का मीटिंग हो गया, लेकिन ओवरऑल आइडिया का कैसे मीटिंग हो सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट ना. एक इंटरव्यू को लेके हम घंटा घंटा बात कर रहे हैं, तो 57 ग्रुप के बारे में बात करने को 570 आवर्स. You can imagine how it's going to happen. So that becomes very difficult. So it has come into paper, it has come on paper in a concise manner. That has happened absolutely beautifully. So Vishesh thanks and क्या बोलते हैं, satkar and greetings to Anushri also in that aspect, and getting work. Okay, fine. So thank you everyone. Thank you one and all. Meeting with the research group we will start. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir.